Hello students, today we are going to learn the importance of decentralization. Decentralization means distribution of power in many hands, and delegation means when the power is distributed between the two person, that is called delegation. So go through the importance of decentralization. Decentralization is a fundamental step and its importance can be understood from the following points. The first importance of decentralization is develop initiative among subordinates. Decentralization help to promote self-reliance and confidence among the सबॉर्डिनेट्स. सो जैसा हमने पढ़ा था कि जैसे हम जो सुपीरियर होता है वो अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर्स जो है काम करने के पावर्स जो है वो सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर करता है, तो इससे क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट है उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है. दिस इज़ बिकॉज व्हेन लोअर लेवल मैनेजरियल levels are given freedom to take their own decision, they learn to depend on their own judgment. क्योंकि उन्हें मौका दिया जाता है कि वो लोग भी डिसीजन ले सकते हैं, तो इनसे उनका जो लेवल ऑफ इनिशिएटिव है या जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है. बिकॉज द प्रीवियसली दिस डिसीजन आर टेकन अप बाय द सुपीरियर ओनली, एंड नाउ इफ द they are given the chance to take the managerial decision, then definitely their confidence level will increase. It also keep them in a state wherein they are constantly challenged and have to develop solution for the various problem they encounter. और वहाँ पर एक तरीके से उनको जब डिसीजन मेकिंग पावर मिल जाता है तो इससे जो भी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती है उन्हें सॉल्यूशन करने के लिए उनके पास मौका होता है. उन्हें डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग तरह का डिसीजन लेने का पावर होता है. इससे कैसे they will overcome from the problem, it provide a great experience for them. A decentralization policy help to identify those executive who have the necessary potential to become dynamic leader. और इस decentralization policy से जो ऐसे सबॉर्डिनेट्स हैं जिनमें क्षमता है कि वो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है अपने टैलेंट को शो करने के लिए. डिफरेंट सिचुएशन में दे विल टेक द डिफरेंट डिसीजंस. सो दिस डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी हेल्प द सबॉर्डिनेट टू इंक्रीज देयर इनिशिएटिव. नेक्स्ट वन इज develop managerial talent for future. Formal training play an important part in equipping subordinates with skill that help them rise in the organization, but equally important is the experience gained by handling assignment independently. और जब हम डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी के थ्रू सबॉर्डिनेट्स को अलग अलग तरह के वर्क असाइन करते हैं, अलॉन्ग विद दैट वी हैव ऑल्सो असाइन द पावर्स to take the decision in different situation, then they are alone independently, they will take the decision, they handling the assignment, and definitely they will gain a great experience of superior's job. Decentralization gives them a chance to prove their ability and create a reservoir of qualified manpower who can be considered to fill up more challenging position through प्रमोशंस. और जिस तरीके से हम उनको डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी के थ्रू अलग अलग तरीके का वर्क प्रोवाइड करते हैं और वो लोग अपनी एबिलिटी प्रूफ करते हैं, ये शो करते हैं कि वो लोग भी मैनेजरियल वर्क को आसानी से प्रूफ सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं विद इन द टाइम पीरियड. वो जो है वो किसी भी वर्क को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं ताकि वो हायर पोजीशन तक पहुंच सकें. इट ऑल्सो हेल्प to identify those who may not be successful in assuming greater responsibility. और इस तरीके से ये सबसे ज़्यादा उन लोगों को जो है मददगार होता है ये डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, जो कि ये समझते हैं कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए. Thus it is a means of management education as well as an opportunity for trained manpower to use its talent in real life situation. और इस डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी के थ्रू एक तरीके से हम सबॉर्डिनेट्स को एजुकेट करते हैं, उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं मैनेजरियल जॉब से रिलेटेड, ताकि
हम अपने जो मैन पावर है उनको इफ़ेक्टिव बना सकें, सो दे विल ईजिली सॉल्व द रियल लाइफ सिचुएशन. Now the third one is quick decision making. The management hierarchy can be looked upon as a chain of communication. You know about this hierarchy, that is the superior subordinate relationship and the different job positions. And there is a chain communication, because all the information pass through a line of authority. In centralized organization, every decision is taken up by the top management. The flow of information is slow as it has to traverse many levels. और आप जानते हैं कि अगर सेंट्रलाइज पॉलिसी है तो वहाँ पर जो भी डिसीजन होगा वो टॉप लेवल के द्वारा लिया जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन जो पास होगी एक पर्सन से दूसरे, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा. रेस्पॉन्सेज आर ऑल्सो टेक टाइम. अब मान लीजिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन पास किया और उस पर्सन से वापस उसका जो रिप्लाई है उसमें भी आने में समय लगेगा. दिस रिड्यूस द स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एन एंटरप्राइज टू अडेप्ट टू डायनेमिक ऑपरेटिंग कंडीशन. और इससे क्या होगा, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम हो जाएगी, इसमें काफ़ी समय लगेगा, और इस तरीके से जो है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक सिचुएशन में काम नहीं कर पाए, बिकॉज यू नो द इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनेमिक. सो fast decision making is required at every stage, so the quick decision can make the necessary changes in the organization as per the changes made in the external environment. In a decentralized organization, however, since decisions are taken at levels which are nearest to the point of action and there is no requirement for approval from many levels, the process is much faster. अब डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी अगर हम यूज़ करते हैं तो जो भी लेवल्स पर कोई डिसीजन लेना है, समय का जो है आपको टॉप लेवल से पूछने की ज़रूरत नहीं है. आप जो है कंक्लूज़न के नज़दीक होते हैं तो उस लेवल पर आपको जो है टॉप लेवल से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यू आर फ्री टू टेक द डिसीजन, और इससे क्या होगा, जो वर्क है वो काफ़ी तेज़ी से होगा, टाइमली अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है. बट इफ़ देयर इज़ ए tough rule that you have to take the decision only from the top level, and then there will be a delay in the decision making process. There are also less chances of information getting distorted because it doesn't have to go through long channel. और अगर हम डिसेंट्रलाइज पॉलिसी फॉलो करते हैं तो जो हमारी कम्युनिकेशन की लाइन है, जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है, उसके चलते बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है बीच में ही डिस्टॉर्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लास्ट तक लेवल तक नहीं पहुंचती है. तो ये एक प्रॉब्लम भी है जो सॉल्यूशन इसका निकाला जा सकता है कि हमें लॉन्ग चैलेंज की ज़रूरत ना हो, हम डायरेक्टली अपने लेवल पर डिसीजन ले सकें. द नेक्स्ट इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. Decentralization diminishes the amount of direct supervision exercised by a superior over the activities of a subordinate, because they are given the freedom to act and decide, albeit within the limits set by the superior. अब डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी के थ्रू क्या है, जो टॉप लेवल के ऊपर पूरा भार हो जाता है कि वो हर एक्टिविटी को देखे, लेकिन ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है. तो डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी के थ्रू हर सुपरवाइज़र को इंचार्ज बना दिया जाता है, अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो अपने अंडर काम करने वाले सुपीरियर की एक्टिविटीज़ को ध्यान दे, उनके फ्रीडम को ध्यान दे, और एक लिमिट सेट करे जिसके अंदर ही रह करके सबॉर्डिनेट्स काम करें. Also, personal supervision is generally replaced by other forms of control such as return on investment, etc. Decentralization also leaves the top management with more time which they can devote to important policy decisions rather than occupying their time with both policy as well as operational decision. और इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स हैं, they have the sufficient time, so they devote the more time on their core activity. जो important matters हैं उन पे वो ज़्यादा ध्यान दे सकें, जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे सकें, ना कि ऑपरेशन से रिलेटेड जो वर्क हैं उन पे उनको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. In fact, decentralization is greatest
when checking require on decision taken by lower level of management is least। और इस केस में डिसेंट्रलाइजेशन होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी डिसीजन लोअर लेवल मैनेजमेंट लेगा, हर चीज़ में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, हर बात में लोअर लेवल को टॉप लेवल से बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोअर लेवल और मैनेजरियल लेवल के जो मैनेजर्स हैं, दे विल एबल टू टेक एनी डिसीजन in respect of their respective department. Next one is facilitate growth. How decentralization facilitate growth? Decentralization awards greater autonomy to the lower level of management as well as divisional or departmental heads। क्योंकि आपने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन के तहत जो मैनेजरियल या लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाती है, ग्रेटर ऑटोनॉमी, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाती है कि ताकि वो अपने लेवल पर डिसीजन ले सकें। This allow them to function in a manner best suited to their department and foster a sense of competition among the department। और इससे फ़ायदा क्या मिलता है कि वो अपने तरीके से अपने डिपार्टमेंट में काम करवाते हैं लोगों से, अपने जो डिसीजन उनके डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट होता है वो उसको फॉर करते हैं और एक कंपटीशन क्रिएट करते हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में ताकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से अच्छा करने की कोशिश करे। कंसिक्वेंटली with each department doing its best in a bid to order the other, the productivity level increase and the organization is able to generate more return which can be used for expansion purpose। और जिस तरीके से जब कंपटीशन बढ़ेगा, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से अच्छा करने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली हर कोई एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करेगा, जिससे प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट होगी और जब इनकम जनरेट होगी तो इससे बिजनेस के एक्सपेंशन में मदद मिलेगी। द नेक्स्ट वन इज बेटर कंट्रोल। Decentralization make it possible to evaluate performance at each level and the departments can be individually held accountable for their result। अब पहले क्या, जैसे मान लीजिए अगर सेंट्रलाइज है तो सभी के ऊपर जो है आप, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सबकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि एक पर्सन के लिए सारी एक्टिविटीज़ फॉलो कर पाना पॉसिबल नहीं है, सुपरवाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब क्या है, हर डिपार्टमेंट हेड्स को जिम्मेदारी दे दी गई कि आप अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होगा उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। अगर आपका टारगेट नहीं पूरा होता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव as well as the contribution of each department in meeting the overall objective can be ascertained। और इस decentralization policy के तहत जो whatever the organization goal decided by the top level management and the contribution of each department must be discussed in the meeting and the managers of different departments are held accountable for non-completion of the objective। फीडबैक फ्रॉम ऑल लेवल्स हेल्प्स टू एनालाइज वेरिएंसेस एंड इम्प्रूव ऑपरेशंस। और जिस तरीके से हर मैनेजरियल डिपार्टमेंट से जो है अलग अलग व्यूज़ लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि जो प्लान्स हमने बनाया और जो आउटपुट आया उसके बीच में कोई डेविएशंस तो नहीं है, अगर आया है तो उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इन डिसेंट्रलाइजेशन वन ऑफ द चैलेंज इज़ द अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। और जब आप डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी फॉलो करते हैं तो जो भी मैनेजर है वो अकाउंटेबल होता है, ही इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। हमने अकाउंटेबिलिटी पढ़ा था, दैट इज़ द पार्ट ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस। In response to this challenge, better control system are being evolved such as the balance score। और इस डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी से आपने क्या किया कि सबको ऑथोराइज दे दिया, सबको अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर दिया, सबको रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि सब लोग अपने वर्क को प्रॉपरली पूरा करें, और अगर नहीं करते हैं तो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। तो इस तरीके से एक बेटर कंट्रोल क्रिएट किया जा सकता है। Now let's go through the differences between delegation and decentralization। So first one, nature। Delegation is compulsory act because no individual can perform all tasks on his own। ये हमने पहले भी पढ़ा कि ये compulsory है, delegation must है, लेकिन भले ही decentralization ना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरा काम अकेले नहीं कर सकता। Decentralization is an optional policy decision। It is done at the discretion of the top and it depend upon the top level management whether they are follow the decentralization or not in their organization।
freedom of action. In case of delegation, more control by superiors, hence less freedom to take own decision. इसमें कम छूट होती है, जबकि लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, हेंस ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन. इसमें सबॉर्डिनेट को काम करने का ज़्यादा फ्रीडम होता है, क्योंकि वो अपने तरीके से डिसीजन फॉलो कर सकते हैं. स्टेट, इट इज़ अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क एंड इट इज़ द रिजल्ट द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो डेलीगेशन क्या है? अपने वर्क को दूसरे के साथ बांटना, और ये डिसेंट्रलाइजेशन में ये डिपेंड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर. Then scope. In case of delegation, it has a narrow scope as it is limited to superior and his immediate subordinate. हमने पढ़ा था ये दो के बीच में होता है. And it has a wider concept scope as it implies extension of delegation to the lowest level of management. ये lowest level तक ये decentralization होता है, इसलिए इसका scope wider है. पर्पज टू लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर. और डेलीगेशन का मेन पर्पज क्या है? जो मैनेजर है उसके वर्कलोड को कम करना. डिसेंट्रलाइजेशन टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग द मोर ऑटोनॉमी. डिसेंट्रलाइजेशन का मेन पर्पज है अपने सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा चांस देना, ताकि वो अपने जो टैलेंट है उसको शो कर सके, वो इफेक्टिव डिसीजन ले सके, ठीक है, और मैनेजरियल जॉब को सीख सके. इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया जाता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजरियल वर्क परफॉर्म करने का चांस प्रोवाइड किया जाता है. So we have just learned the different importance of decentralization. You go through all these points once again, and I hope you will understand the points which I have explained with you.